Hello friends, welcome back to our next session. Hope you all have the videos which we are making, hope it's helping you people. So I request everyone to please leave the comment and press the like button and also subscribe the channel. So the next session, the next unit which we are going to do is the reading skills. Now reading skills, everyone, now reading means basically reading, and you many mostly in India we are blessed that every Indians almost more than two languages he can read and write, and and speaking also more than two languages we the Indians do. But बाहर के countries में उनको एक ही लैंग्वेज लिखने आता है, एक ही लैंग्वेज बोलने आता है. बट इंडियंस भी, बिकॉज हम लोग के अलग अलग स्टेट्स है और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस है, सो भी हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस रीड करने आते हैं और लिखने भी आते हैं और पढ़ने भी आते हैं. जैसे इन मुंबई भी, मुंबई, most of the people know how to read and write Marathi. The most of the people know how to read and write Hindi, and most of the people know how to read and write English, and many of them also knows the fourth language, which is very uh, uh, superb thing for the people who is living outside India. So now the modes or sources of reading, where all we use the skills and where exactly we read. You might have not observed in your daily life every single thing. Most of the time in a day you tend to read unknowingly, like just watch bhi dekh rahe ho, you are reading your watch. When you are watching the television, you are reading. So before electronics, there was only source before was books. So books used, many people used to read books. So if you'll notice, the generation, the previous generation, those who were born around 1960s to 1970s, those people used to love reading, because that time at their age, that time the electronic media and electronics devices were less available, so they were very born to read books, and physical books they used to read many. So this is one of the very important source and mode of reading. Then the other things, then people used to write letters also. पहले post office में letters वगैरह लिख के ये करते थे. Now letters, and for to pass the information, now letters hardly few people write. पोस्ट के डब्बे यूज नहीं होते, ओनली गवर्नमेंट के लिए कुछ ऑफिशियल है तो ही दिस पोस्ट ऑफिस एंड लेटर्स आर यूज्ड. But this is also one source of reading. Then newspaper, yes, still people are reading the newspapers. So different languages के newspapers आते हैं हमारे घर पे, बहुत जन के घर पे. So this is also one source and mode of reading. एंड एक न्यूज़पेपर के अंदर भी डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड होता है एक न्यूज़पेपर. मैन जो आपको इंटरेस्टिंग थिंग लगता है, दैट पर्सन रीड्स दैट पर्टिकुलर कंटेंट. Then we read messages now through electronic media. Like there is not only mobile phone. मोबाइल फोन में ही वी रीड मैसेजेस, जो टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, वी रीड मैसेजेस विच कम्स ऑन व्हाट्सएप, वी रीड मैसेजेस कम्स ऑन फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया साइट्स, एंड ऑल्सो दी emails, हम लोग emails आते हैं. So and also there are this all books, newspapers and emails, these all are for available in your mobile in the format of e-books and e-newspaper. So mobile or any electronic device, your laptop or your computer, it is an source of reading. It is also a very good source of reading. Nowadays many of the many the new generation, they are mostly addicted to e-reading. They don't yes, it also saves the wastage of paper also. There are some benefits and there are certain disadvantages of e-readings also. So
now people when they look at the book they get bored. Many of them want to see videos, many of them want to see the book, read the book on their tab and mobile phone only. Then there is one other source also, like banners होते हैं, holdings होते हैं when you walk on the road. बहुत सा जस्ट दी आपके घर के बाहर नेम प्लेट रहता है, इवन दैट इज अ रीडिंग. कुछ सोसाइटी में कुछ नोटिस है, सो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा हुआ रहता है, दैट इज ऑल्सो रीडिंग. कुछ बैनर्स रहते हैं, होल्डिंग्स रोड्स पे. अभी कोविड के टाइम पे यू माइट हैव नोटिस देयर वाज सो मेनी स्लोगन्स अक्रॉस द रोड्स, बिसाइड्स दिस रोड्स. बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप or source of, or the mode of reading, you can say. Now when we say reading, is it really important to read? ज़रूरी है क्या रीड करना? ज़रूरी है तो किस तरीके से ज़रूरी है? What do you think by reading? क्या क्या मिलता है हम लोगों को? Do we gain anything by reading? मतलब ऐसा है क्या जो रीड नहीं कर सकता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है? So yes, भले जो पर्सन अनपढ़ भी है, who cannot read, वो भी कुछ ना कुछ परसेंट 10% रीड कर सकता है. So there is no person who cannot read anything. Reading is not only reading the letters. Reading is also reading, uh, you can say the signal पे red light आ रहा है, you are reading that. That is also called one type of reading. So reading is not only fixed with only the words and the letters and the sentence what we read. Okay, so yes, there are certain importance of reading. So let's see what are the importance of reading. So when you read, you gain knowledge, and it's not necessary that you will get knowledge every time, but yes, it will add to your knowledge. Just imagine from infant, when आप छोटे बच्चे थे और धीरे धीरे बड़े होते गए, और अभी जहाँ पे हो स्टेज में, आपने इतने सारे चीजें सुने, देखे, एंड बहुत सारी चीजें रीड भी किए. सो some of the parts of your knowledge what you have received from reading. So reading से you gain knowledge, कुछ अभी कोविड-19 बोलते हैं, सो यू स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन इंटरनेट क्या है कोविड-19, सो व्हाट इज मीन बाय वायरस, सो यू रीड and you get the knowledge. Injections, medicines, particular इसके लिए क्या क्या करते हैं, so you type on Google and you read the content and you gain the knowledge and get the information. जैसे एक just like a mobile phone, आपका मोबाइल फोन आफ्टर एवरी 6 months और 8 months इट आस्क्स द नोटिफिकेशन अपडेट, और जब आप उसको अपडेट करते हो, या मोबाइल का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स चेंज हो जाते हैं, एंड यू गेट सम एडवांस वर्जन और एडवांस फैसिलिटीज इन दैट मोबाइल फोन. सो अपडेशन ऑफ your information get updated. So same like your mobile phone and your computer, by continuous reading, your knowledge and your information gets updated. ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल पहले आपने कुछ सोचा था, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो करेक्ट है, बट आफ्टर रीडिंग सम कंटेंट यू गॉट टू नो कि अरे वो इंफॉर्मेशन विच आई हैड वो तो आउटडेटेड एंड wrong information tha. So you get the new information and you get updated with the new information. So two things are the importance of reading. First, gain the new knowledge, then update your information. So when we say reading, क्या हर तरीके का रीडिंग सेम होता है? डू यू थिंक जो एक पोएट रीड कर रहा है वो ही उसका आप एक स्कूल टीचर रीड कर रही है एक बुक, उससे कंपेयर कर सकते हो? या
एक राइटर रीड कर रहा है और जो रेलवे स्टेशन पे जो माइक में अनाउंस कर रहा है इंस्ट्रक्शंस रीड करके, वो सेम है? Is there any difference? Yes, there are different types of readings. So let's see, there are mainly three types of reading in which reading is classified. So let's see what are those types, and let's understand what the types means. Now, reading for business. Reading for business, how simple it is to understand, उतना सिंपल नहीं है रीडिंग फॉर बिजनेस। आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक? रीडिंग फॉर बिजनेस मतलब जो काम पे जाते हैं और जो हम लोग को फाइल्स मिलते हैं वो रीड करते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड रीडिंग फॉर बिजनेस। इट ऑल्सो हैज अ डीपर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने बहुत सारी चीजें अननोइंगली यू रीड, बट यू डोंट नो व्हाट इट इज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे ये एक कोई भी आप घर में पैकेट ले लो, जो कुछ भी, एनीथिंग, सॉस का पैकेट है, नूडल्स का पैकेट है, और एनी पैक, मैगी लिया या एनीथिंग यू ब्रिंग रेडीमेड पैक्ड, और ओनली वाटर बॉटल इफ यू विल सी, डिस्लरी, उसमें आपको बहुत सारी जगहों पे एक ऐसा मार्क दिखेगा स्टार का, जो कंडीशन के पहले स्टार लगे ना, दे विल जस्ट डू अ स्मॉल स्टार विच यू कैन नॉट इवन सी, इतना छोटा रहता है, बट इट हैज अ ग्रेटर मीनिंग। अभी क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट में दे विल राइट ऑल द इंग्रेडिएंट्स कि ये प्रोडक्ट के अंदर इतना परसेंट शुगर है, इतना परसेंट प्रोटीन है, इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड बाद में दे पुट दिस स्टार साइन। सो मतलब वो हाउ दिस स्टार साइन प्रोटेक्ट्स देम एज अ बिजनेसमैन इज कि समझो मैं लॉयर हूँ और आई हैव बॉट दैट प्रोडक्ट और मैंने उसका मेडिकली टेस्ट करवाया, एंड जो उसमें लिखे हैं उतना नहीं है, सो आई कैन पुट अ केस ऑन देम, एंड मैं चाहिए उतना उनसे मुआवजा ले सकता हूँ उस चीज का। सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ दे पुट कंडीशंस अप्लाइड। वो स्टार का मतलब होता है कंडीशंस अप्लाइड, मतलब उस इतने इतने परसेंट है, इतने इतने परसेंट है, लेकिन हम लोग ने फैक्ट उस कंडीशन अप्लाई में दे कैन राइट एनीथिंग, मतलब उन लोग ऐसा कोई केस आता भी है फ्यूचर में, उन लोग बोलेंगे प्रोडक्शन करते हैं तभी उतना होता है, फिर विद द टाइम इट कैन डिक्रीज और इट कैन वेरी। सो ऐसा दे कैन प्रोटेक्ट देम सेल्फ। सो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड बिजनेस रीडिंग। सेम लाइक दैट, और एक वन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक आपने बहुत सारे, जस्ट नॉर्मली बिस्लरी का एक बॉटल ले लो आप, बिस्लरी के बॉटल के नीचे जहां पे हम लोग उसको खड़ा करते हैं, नीचे बेस के इधर यू विल नोटिस दिस काइंड ऑफ सिंबल, ऐसा तीन एरो से एक ट्राइंगल बना होगा और उसके अंदर एक नंबर लिखा होगा। नाउ दिस नंबर ऑल्सो हैज सम मीनिंग इन इट। व्हाट डज इट मीन्स? आपको ऐसे अलग अलग प्लास्टिक के डब्बों पे ऐसे अलग अलग नंबर्स लिखे होंगे, जहां पे 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, वैसे बॉटल्स वी शुड नॉट रीयूज। बहुत सारे लोग क्या करते, पानी का बॉटल बिस्लरी का लेके घर में आके रखते, देन उसको उसमें ही पानी डाल डाल के वापस वापस पीते, बट टेक्निकली साइंटिफिकली इट इज नॉट मेंट फॉर रीयूजिंग। उसमें से वो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े अंदर पानी में जा सकते हैं। सो 4 नंबर के ऊपर वाला कोई नंबर, ये नंबर है, दैट यू कैन रीयूज, एंड उसमें भी कोई कोई केमिकल के लिए यूज, ऐसे नहीं है कि फिनॉल का बॉटल आपने लिया और यू शुड वॉश इट एंड यू शुड यूज इट अगर उस पर नंबर 4 है या 5 है। सो वैसे, बट 4 के नीचे जो नंबर्स है दैट यू शुड अवॉइड री यूजिंग इट। वन टाइम यूज करके आपको थ्रो करना पड़ता है, वो भी डस्टबिन में, वो भी प्लास्टिक वाला या भंगार वाला नहीं लेता है। एंड रास्ते पे जो भिखारी लोग रहते हैं, दे टेक, एंड लोग देते भंगार वाले लोग को। सो दिस प्लास्टिक्स आर वन टाइम यूज के बाद दे गेट इनटू रिसाइकल मोड। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस रीडिंग। सो यू कैन लुक अराउंड योरसेल्फ, देयर आर मेनी सच थिंग्स विच जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है बट वहां पे है, बट इट जिसने उसको वहां पे डाला है, दैट पर्सन नोस व्हाट एंड हाउ इट विल प्रोटेक्ट दैट।
So as please, if you notice anything like this, I will request you to put that in comment, so other people will also know. Okay, so this is called reading for business. Then the other type is reading for pleasure. Now pleasure जो बोलते हैं अपने सुकून के लिए जो रीड करते हैं ना. Now you are looking at this video, you are reading your book of यशवंत राव. दिस इज नॉट प्लेजर. सबके लिए प्लेजर नहीं हो सकता है. सम पीपल माइट बी फोर्सफुली रीड कर रहे हैं, अरे यार एग्जाम से तो पढ़ना पड़ेगा. सो दिस इज नॉट फॉर प्लेजर. लेकिन आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, स्टोरी बुक लेके इंटरेस्टिंग, सो यू दैट इज फॉर योर इंटरेस्ट यू आर रीडिंग. सो उसको बोलते हैं रीडिंग फॉर प्लेजर. कोई बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं. सो उनको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, दे आर रीडिंग फॉर देयर प्लेजर. उनके प्लेजर के लिए, उनके सुकून के लिए दे आर रीडिंग. उनके फन के लिए दे आर रीडिंग. दिस इज कॉल्ड रीडिंग फॉर प्लेजर. ओके, एनी स्टोरी बुक्स हो गया, एनीथिंग, देयर सच काइंड ऑफ बुक्स जहाँ पे आपको सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन यू आर रीडिंग, नो वन इज फोर्सिंग, आपका कोई एग्जाम नहीं लेने वाला है, यू आर रीडिंग स्टिल. दिस इज कॉल्ड रीडिंग फॉर प्लेजर. ओके, now there is third type of reading which we all are currently doing, you all are doing because of your exams, and हम लोग ने काफ़ी सालों तक हम लोग के लाइफ में किया होगा वो. दिस इज रीडिंग फॉर एजुकेशन. सो व्हाट वी आर डूइंग इज रीडिंग फॉर एजुकेशन. सो बहुत जन ने starting from senior KG, first, second, third, fourth, fifth standard, seventh standard, eighth standard, 10th standard तक जो भी आप लोगों ने स्कूल से बुक दिए लिए हुए, रीड किए हुए, दैट इज फॉर एजुकेशन. सो इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. सो दिस ऑल सब्जेक्ट्स यू हैव टू रीड सो दैट यू कैन पास इन द एग्जाम. सो दिस इज कॉल्ड रीडिंग फॉर एजुकेशन. सो वैसे बुक्स एसएससी के लिए हो गया, एनीथिंग. सो आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जाम्स 10th स्टैंडर्ड, फिर बाद में यू हैव टू, यू हैव साइंस लिया तो यू विल हैव दिस केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स. वही कॉमर्स लिया तो यू विल हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स. वही आप लोगों ने आर्ट्स लिया तो यू विल हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स. So this is reading for education. So reading for education is this. So when we say reading, you all must have faced difficulties while reading in life, in some point of your life. Like for example, स्कूल में अचानक टीचर ने आप पे पॉइंट कर दिया रीड. सो ऐसे काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस आया होगा. सो लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. कभी हम लोग बोलते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट रीडिंग प्रॉपरली और ही इज अ पुअर रीडिंग. सो दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर रीडिंग. हाउ टू नो दिस is poor reading. So when we say poor reading, what all things we need to improve so that we should not fall in poor reading? That is incorrect pronunciation. Pronunciation is the, हम लोग जो बोलते हैं, अभी प्रोनाउंसिएशन किसी किसी को बोलने नहीं जम सकता है, वो प्रोनाउन थी ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं. So pronunciation, correct pronunciation is important in reading, while reading. So reading properly every word with proper pronunciation is a good reading, but many people fail to do that. So that falls in the characteristics of poor reading. जैसे यहाँ पे some of the examples of words. Now to make it very simple, you all can break the word to pronounce that word properly, like accessories. So उसको how you are telling, आप अपने words में accessories उसको ब्रेक करके डैश करके आप लिख सकते हो. बाउल, कूपन, डेटा, डिस्क्रिशन, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर,
आयन वेनेसडे। सो अभी इसके अंदर बहुत सारे जन आयन को आयरन बोल सकते हैं। सो इट्स नॉट द वे ऑफ रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली। So right pronunciation is very important while reading. So you need to read it very carefully. Take time, but right pronunciation is very important. And it is irrespective of any language. कभी कभी मराठी में भी कोई कोई वर्ड्स किसी किसी को डिफिकल्ट हो सकते हैं, हिंदी में किसी 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 को कोई वर्ड बोलने के लिए डिफिकल्टी हो सकता है. सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट, break down that word into small things and read properly and try to pronunciate that word properly. So that is called pronunciation. Then some people read slow while reading. कोई कोई बहुत स्लो रीड करता है, धीरे धीरे. दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स, जो कॉमा होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं. Is this all called, these are all called pronunciation, these all called punctuation marks. So some people don't follow that properly. किधर किधर एकदम एक्सट्रीम फास्ट रीड कर रहे हैं और किधर किधर एक्सट्रीम स्लो रीड कर रहे हैं. So that is not a way. You should maintain a proper flow of reading. And some people reading small blocks, छोटे छोटे blocks read करते हैं. You must have noticed small children oftenly do like this. So this is also a poor reading skill. Then no use of voice modulation. Voice modulation is what? Voice modulation is not making noise, और चिल्लाने को वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं बोलते. ओके, वॉइस मॉड्यूलेशन आपको मैं बोलूँगा तो, हैव यू हर्ड एनी राइटर व्हेन ही लॉन्च हिज बुक्स एंड वो सिटिंग करता है, ही रीड्स हिज बुक. सो द राइटर हाउ इट, वो जब रीड करता है, so by listening that you can just imagine what he has written. You can go into the story. So that why exactly it happens, this is because of voice modulation. They know कौन से वर्ड को ज़्यादा स्ट्रेस देके बोलना है, कौन से वर्ड को धीरे से बोलना है, क्या स्मूथनेस रखना है. सो दिस इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन. यू कैन जस्ट लिसन टू द रेडियोस. जब रेडियो जॉकीज बोलते हैं, they use a very high modulation, voice modulation skills. उनके पास ये skills, because वहाँ पे रेडियो में no one can see them, only the voice is audible, and they need to be very perfect in voice modulation. So voice modulation skills radio jockeys में you will find, the news anchors you will find, जो न्यूज़ रीड करते हैं उसमें पाओगे. देन पिक्चर में जब कोई एक्टिंग करता है, वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करता है. उसका रियल लाइफ में वॉइस अलग रहेगा, लेकिन दे वो पर्टिकुलर डायलॉग बोलते हुए दे विल यूज द वॉइस मॉड्यूलेशन. सो वॉइस मॉड्यूलेशन उसको बोलते हैं. ओके, देन हाउ टू डेवलप द इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स. अभी वो जो पुअर रीडिंग स्किल्स हमने देखा, उसका ही ऑपोजिट करके we can actually develop our skill, and we can become an effective reader. Like for example, reading accurately with understanding. So जब आप रीड करते हो with understanding, then automatically your voice modulation will change, your speaking style will change, the pronunciation will change. So reading accurately with right pronunciation and with also understanding. So when you are reading, अगर कोई specific word आपको नहीं समझ में आ रहा है, so you can go to Google, check what is the Hindi translation, what is the Marathi translation, or in your own mother tongue which is simpler for you, और English में ही उसके simpler words क्या होते. So this all things you can do with research. You read maximum newspapers daily के, try to understand different languages के. So reading accurately with understanding will help and make you an effective
रीडिंग स्किल्स. देन ये तो हम लोग फॉलो करते हैं, रीडिंग लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम. all the most of the लिपीज जो बोलते हैं हम लोग, जो लैंग्वेज है, इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, एंड साउथ के इतने सारे लैंग्वेज है, तमिल है, फिर तेलुगु है, द फॉरेन लैंग्वेजेस है, फ्रेंच लैंग्वेज है. सो दिस ऑल थिंग्स दे फॉलो दिस थिंग, राइट, लेफ्ट टू रीड, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड में रीड करते हैं. फिर नेक्स्ट लाइन पे वापस लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट, फिर ऊपर से नीचे. बट some of the, like, if you will see Arabic, when you read Arabic, it follows the other way. वो लोग right to left read करते, but yes, from top to bottom, but right to left they read. So leaving only Arabic language, they are all other language follows this. So English में तो reading from left to right and top to bottom. Then develop योर कॉम्प्रीहेंशन. डेवलप योर कॉम्प्रीहेंशन मतलब, कॉम्प्रीहेंशन मतलब कोई भी पैराग्राफ को कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं. अभी आपको समझो, व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, यू शुड डेवलप अ स्किल कि आपको एक वर्ड दिया तो यू कैन टेल, आप उसके बारे में कम से कम 2 से 3 मिनट बात कर सकते हो. दैट इज व्हाट डेवलप योर कॉम्प्रीहेंशन. वो वर्ड को लेके यू कैन डेवलप योर ओन कॉम्प्रीहेंशन, एक पूरा पैराग्राफ एंड द मल्टीपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू कैन क्रिएट. सो फॉर दैट you need to continuously read, so that you will gain knowledge and you will update your information, which will help you to develop your comprehension. So developing comprehension is very important, which helps you to speak also. So reading will develop your comprehension, because you will get new words, new vocabularies, new sentences, कौन से वर्ड को कौन से सेंटेंस में से राइट तरीके से यूज करना है. सो दिस ऑल थिंग्स यू विल गेट. सो डेवलपिंग योर कॉम्प्रीहेंशन. देन वाइल रीडिंग, आँख थोड़ा वाइडन करके प्रॉपरली रीड करना चाहिए, सो दैट कोई आधे नींद में रीड करते हैं, आँख आधा बंद है एंड दे आर रीडिंग, so their reading will be also like that. So reading with widely open eyes, with proper amount of light, is which other factor, ये other factors है which affects the reading. So properly आँख खोल के properly you have to follow the words and sentences and read. Then develop your vocabulary. Vocabulary मतलब words. When we say I am good brother, so good is a vocabulary, brother is a vocabulary. New words, I am fantastic brother. So good ka other word, fantastic you can say. So when you can say the same sentence in other ways, when you have a good amount of vocabularies. Vocabularies are nothing but words, नए words. So when you read many things, बहुत ज़्यादा आप रीड करते हो, देन यू विल गेट अ न्यू वोकेबलरी. वायरस के बारे में बहुत जन ने पहले सुना ही नहीं होगा. कोविड-19 आया तभी वायरस हम लोग को मालूम पड़ा. व्हाट इज वायरस, व्हाट इज वेंटिलेशन, वेंटिलेटर, ये सब हम लोग को बाद में मालूम पड़ा. इम्यूनिटी, दिस, ये बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी पहले सुना ही नहीं रहेगा. सो दिस हैज एडेड इन देयर ओन डिक्शनरी. हम लोग का ब्रेन इज ऑल्सो वन डिक्शनरी. डिक्शनरी आप सब जन ने देखा होगा, डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं. वो डिक्शनरी एक पॉकेट साइज भी आता है, उसमें भी बड़ा आता है, उससे भी बड़ा आता है, उससे भी बड़ा आता है. सो वर्ड्स आर एंडलेस. Vocabularies keep on adding every single minute and every single second in every languages. So you need to develop your vocabulary. This will help you and make an effective help you to read effectively. Then there are certain methods of reading. Now many people have seen कैसे कैसे लोग रीड करते हैं, क्या करते हैं. So basically this methods of reading, they have classified into majorly two things. एक तो fast and slow. Two things they have classified this methods of reading को.
फास्ट रीडिंग एंड स्लो रीडिंग। फिर ये फास्ट रीडिंग के अंदर भी देर आर सम पॉइंट्स, मेथड्स ऑफ रीडिंग के अंदर फास्ट एंड स्लो, इट्स वेरी सिंपल। फास्ट के अंदर अगेन देर आर टू थिंग्स विच इज स्किम। स्किम रीडिंग मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, व्हेन यू से उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, एंड हैव यू नोटिस इतने सारे पेपर्स का इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए फुल 7 से 8 घंटे लग सकते हैं फुल पढ़ने के लिए। बट यू माइट हैव नोटिस कि कोई कोई आधे एक घंटे में पढ़ लेता है, न्यूज़पेपर साइड में रख देता है, एंड अदर पर्सन टेक्स द न्यूज़पेपर एंड वो रीड करता है। सो दिस इज कॉल्ड स्किम रीडिंग, मतलब नॉट रीडिंग इन डिटेल, जस्ट रीडिंग दी हेडलाइंस, सब देखते जा रहे हो, स्किम करते जा रहे हो, उसको आप स्किम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्किम रीडिंग। दिस कम्स इन फास्ट टाइप ऑफ रीडिंग, ओके। देन अदर टाइप ऑफ रीडिंग is called scan reading. Scan reading के अंदर for example when you are reading novel or any story book, you get into the story and you are reading very carefully, scan करके, understanding every single sentence and word, that is called the scan reading, okay। these are the two types। so methods of reading के अंदर fast and slow है। fast के अंदर there are two things, स्किम रीडिंग एंड स्कैन रीडिंग। स्किम करते जाते हो, हेडलाइंस देखते, अंदर का डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हो, जस्ट गोइंग थ्रू इट, फटाफट 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 पढ़ लिया आपने, लेकिन यू अंडरस्टैंड कि हेडलाइंस क्या है, आजकल क्या न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट खबर है, यू आर अपडेटेड। बट स्कैन रीडिंग के अंदर यू रीड इन डिटेल, व्हेन यू आर रीडिंग योर बुक फॉर एजुकेशन, तो आपको पूरा याद रखना पड़ता है, उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना पड़ता है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड यू कैन राइट इट। देन स्लो रीडिंग के अंदर देर आर टू थिंग्स, one is called analytical reading। analytical reading मतलब आपने कविता पढ़े होंगे, पोइट्रीज पढ़े होंगे, दिस आर कॉल्ड ना, पोइट्रीज के अंदर रहते 4 से 5 लाइन, बट उसका एक्सप्लेनेशन कैन बी ऑफ एंटायर वन बुक, सो दैट इज कॉल्ड एनालिटिक रीडिंग। सो पोइट्री के अंदर वर्ड्स लाइन्स से 5 है, लेकिन बिटवीन द लाइन्स बहुत सारा मीनिंग है, सो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल रीडिंग। सो एनालिटिकल रीडिंग मीन्स थिंकिंग केयरफुली, क्रिटिकली एंड डीपली वाइल रीडिंग। सो मोस्टली पोइट्रीज जब हम लोग रीड करते हैं, कोई कविता से रीड कर रहे हैं, सो हिडन मैसेजेस उसके अंदर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। so these are called analytical reading, okay। then next is called critical reading। now critical reading के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस आ गया, तो कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स लोग ने निकाले, सब अलग अलग डेटा कलेक्ट किया, एंड सब डॉक्टर्स मिलके बैठ के दे आर रीडिंग ऑल दैट थिंग्स, they are analyzing, they are critically, बहुत critically they are research देख रहे हैं, and they are trying to break, how we can break and stop this thing। so research methodology हो गया। the critical reading is more active way of reading। so उसको डिटेल में अंदर घुस के पूरा उसको रीड करते हैं, and try to understand every single thing in different perspective, that is called a critical reading, okay। so methods of reading, there are two types, fast reading, slow reading। fast के अंदर skim, scan। skim न्यूज़पेपर फटाफट रीड करते हैं, scan is reading in detail, बुक्स रीड करते हैं। फिर slow में analytical reading and critical reading। so these both things takes time। analytical reading poetries वगैरह, then critical reading research books and all that we study and try to कोई ये कुछ कोई कोई कभी कभी ये पुलिस वाले सब डिटेल में फाइल पढ़ते, दे ट्राई टू चेक ऑल द क्राइम सीन्स वगैरह पढ़ के, दे ट्राई टू एनालिट क्रिटिकली उसको ब्रेक करके रीड करके पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, एंड दे फाइंड द मेन विक्टिम। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीडिंग, ओके। now there are certain ways how you can improve your reading। बेसिकली आप लोगों ने पेंटागन देखा है, देयर इज अ ट्रायंगल,
ट्रायंगल के अंदर 3 साइड रहते हैं, स्क्वायर के अंदर 5 साइड रहते हैं, वैसे पेंटागन के अंदर 5 साइड्स रहते हैं. So there are total 5 ways in which you can improve your reading. Now let's see what are the first thing when you read. First thing is you need to read. Read करना 3 R's है. Read, recall and review. Read मतलब you have to read, continuously read करना है. फिर recall, जो पहले रीड किया है उसको, जो करंट रीड कर रहे हो उसको रिकॉल करके इससे कनेक्ट करना है. फिर रिव्यू, रीड करने के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड रिव्यू. और आपका उस पर ओपिनियन, यू नीड टू मेक योर ओन ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड रिव्यू. रीडिंग, रिकॉलिंग, जो पीछे का रिकॉल कर रहे हो. देन रिव्यू, यू आर making your own opinion and giving your reviews on that particular written note, that is called review. Then survey, सर्वेस के अंदर सर्वे रिसर्च होते हैं, जैसे कि सेंसेक्स के लिए जनगणना बोलते हैं ना, घर पे आते हैं एवरी ईयर, दे काउंट आपके घर में कितने जन हैं, कितने जन कितने क्या एज ग्रुप के. सो दे आर डूइंग रिमूविंग दी जनगणना और उससे सेंसेक्स बनाते हैं. सो दिस इज वन टाइप ऑफ सर्वे. वैसे ही देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेस, जैसे इलेक्शंस होते हैं, सो सर्वे होता है एंड विच पार्टी विल विन, उसका सर्वे किया जाता है. सो सर्वे बुक्स यू कैन रीड. सर्वे करने से भी, सर्वे बुक्स इफ यू विल रीड, मेनी सर्वेस इफ यू विल रीड, then also your reading skills will improve. Then keep asking questions. When you are reading, you should ask question, like particular word if you are not understanding, go back, do research. What, first you need to ask what, why I am reading this, what, then why you are reading this. These all things keep on asking to yourself while reading, then you will get the answers and you will develop your reading skills definitely. Then there are certain this way. Now reading when we say, it's not only, जैसे आपको मैंने बताया था, सिर्फ वर्ड्स और सेंटेंसेस से रीड नहीं करते हम लोग. देयर आर मेनी अदर वेज ऑफ रीडिंग ऑल्सो. नाउ दिस, जैसे विजुअल, हाउ विजुअल improves अंडरस्टैंडिंग, लाइक देख के हाउ यू विल रीड. इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली जो वर्ड्स एंड लेटर्स लिखे हैं या सेंटेंस लिखे हैं बुक पढ़ के ही या किधर से रीड करके ही आप लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हो. ओनली देख के, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेटर्स, द वर्ड्स और सेंटेंस. कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के बाहर एक बच्चे का फोटो है ऐसे रनिंग का फुटपाथ पे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे गाड़ी फास्ट नहीं चलाना है. बाय लुकिंग एट दैट पिक्चर यू अंडरस्टूड, अरे यहाँ पे नहीं करना है. कोई होटल के बाहर नो स्मोकिंग का ये कर साइन बना के रखा है, वहां पे लिखा नहीं है नो स्मोकिंग, बट यू अंडरस्टैंड, पी करके बीच में डैश किया हुआ है, नो पार्किंग. सो यू बाय लुकिंग एट दैट यू रीड एंड अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहे हो लोग. लाइक ड्राइंग्स, जब हम लोग, क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जब स्मॉल एज में, मैनी चिल्ड्रंस ड्रॉ, एंड ये ड्राइंग्स ऑल्सो हैव मैनी मीनिंग्स. ड्राइंग से बहुत सारा मीनिंग्स निकलता है, जैसे बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं. इट हैज़ अ वेरी डेप्थ in that paintings. So drawing has some understanding. The artist want to say something with his drawing. जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, they express their thoughts and speech by drawing. So there are many doctors and researchers, educators who are specifically dedicated for this. By looking at that the children's drawing, they make out कि what is their problem, लोगों को क्या problem है, लोगों को क्या difficulty है, are they happy, are they sad, क्या factor is troubling them, everything they can do by just looking at their drawing. So drawing is one way of this. Then pictures, जैसे मैंने आपको बोला pictures देख के ये करते हैं हम लोग.
मैनी पिक्चर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे वो डिगिंग का ऐसा फोटो लगा के रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस. सो बाय लुकिंग एट द पिक्चर ओनली यू विल अंडरस्टैंड यहाँ पे कुछ वर्क कंस्ट्रक्शन चालू है आगे. सो बाय पिक्चर्स. Then graphs. Have you noticed graphs? Graphs are called this. There are different types of graphs. जैसे हम लोग अपना पॉपुलेशन ग्रोथ बता सकते हैं ग्राफ में. एनीथिंग we every single thing we can present in the form of graph. So some people are very comfortable in presenting in graph. कोई कोई see why this visual thing is important, because many हम we are every person is different. किसी किसी को रीडिंग पसंद होता है, किसी किसी को एंड तक उसको रीडिंग समझ में ही नहीं आता है. सो फॉर देम दिस इज इम्पोर्टेंट. भले वो रीड नहीं कर पा रहे हैं बट ही कैन रीड एंड एनालाइज एंड एक्सप्रेस हिज थॉट इन वेरी मच बेटर वे बाय दिस अदर थिंग्स अदर देन रीडिंग. सो ग्राफ्स में एक किया जाता है. सो वो जैसे अर्थ में कितना परसेंट पानी है, कितना परसेंट लैंड है, कितना परसेंट आइज है, वो दिखाने के लिए ग्राफ में कर सकते हैं. देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन. अपना पॉपुलेशन दिखाने के लिए कर सकते हैं. अभी कोविड के केसेस बताने के लिए कर रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स ग्राफ. So graphs is one of the way. Then diagrams. Now diagram, you might get confused. Drawing and diagram ये तो एक ही है ना? नहीं, drawing is different. Paintings. Diagrams are like आपको इफ यू आर इन अ मेडिकल कॉलेज और आपको हार्ट का डायग्राम बनाने का, सो यू विल मेक द डायग्राम विथ एन एक्यूरेसी कि उसके अंदर कितने चैम्बर्स है, कौन सा वॉल्व, कौन सा आर्टरी, कौन सा वेन कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है. यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक. सो और रेस ऑफ लाइट आप ड्रॉ कर रहे हो, हाउ इट ट्रेवल्स. सो दिस इज diagram by which it will explain something. So that is called diagram. And drawing is just an artistic drawing. It can be any way. जैसे एक how it shoots to you can draw in that way. Then maps. There are maps, जैसे जो वर्ल्ड मैप होता है, फिर इंडिया का मैप है, नक्शा. मैप्स को नक्शा बोलते हैं. सो कोई कोई मैप लेके भी रीड करता है कि यहाँ माई पोजिशन इज हियर और मुझे यहाँ पे जाना है तो मुझे कौन सा रूट लेना है. सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रीडिंग. ओके. देन क्लासीफाइंग इन कॉलम्स मतलब ऐसा ऊपर से ऐसे साइड में क्लासीफाई किया हुआ है. एंड ऐसा हॉरिजॉन्टली जो ये बनाते हैं उसको कॉलम्स बोलते हैं. एंड जो वर्टिकली जिसको ऐसा ये कॉलम्स ये बनाते हैं उसको कॉलम्स बोलते हैं. एंड जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रोज बोलते हैं. सो दिस आर द कॉलम्स. सो कॉलम्स में वी कैन क्लासीफाई कि लेट्स क्लासीफाई दिस. डिफरेंस बिटवीन आपने देखा रहेगा ना, राइट, डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. सो बचपन में देखा है हमने क्लासीफाई उसको करते, एक साइड पे ह्यूमन लिखा है और एक साइड पे एनिमल लिखा है, देन यू कीप राइटिंग एनिमल का पॉइंट एंड इसका humans का point. So like that is called one type of classification. Then comparing difference, comparative study बोलते हैं इसको. comparative study मतलब difference between एक से अगर दो चीजों के बीच में है तो उसको कंपैरिजन करते हैं. तो उसको कंपैरिजन करके उसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं. अभी समझो बहुत सारी चीजें हम लोग को दी है और उसके अंदर मेटल, बहुत सारे मेटल है, प्लास्टिक है, पेपर है. सो क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन दिस वे, लाइक segregate in the form of this disposable and non disposable. तो वैसे कर सकते हैं. अदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन से भी कर सकते हैं, विच आर हार्ड, विच आर सॉफ्ट, एनीथिंग विच कैन बर्न, विच कैन नॉट बी बर्न, ऐसे कर सकते हैं. एंड डिफरेंस बिटवीन, you can try difference between like दो प्लांट्स लिए, एक रोज का प्लांट एक तुलसी का प्लांट है, उसके बीच में डिफरेंस लिख सकते हो. सो दैट इज कंपैरेटिव स्टडीज. अभी इंडिया का कंपैरिजन विथ जर्मनी वी कैन डू. वैसा एनीथिंग कंपैरिजन कैन बी डन बिटवीन टू थिंग्स, एनी टू थिंग्स. दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टडी. देन
there is progressive way of reading. Progressive way of reading में इसके अंदर is you follow the process, a step by step procedure, that is called progressive reading. जैसे for example, let's see, you want to make a very authentic biryani. सो ऑथेंटिक बिरयानी के लिए ऑथेंटिक रेसिपी चाहिए. सो आप लोग रीड करोगे रेसिपी एंड वो प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करोगे. पहला ये करना है, सेकंड ये करना है, इतना क्वांटिटी डालना है, सेकंड ये करना है, इतने आंच पे पकाना. सो यू विल फॉलो स्टेप बाय स्टेप procedure and you will read and you will follow that is called progressive reading. Okay, hope you people have liked this session, and if you have liked this session, please press the subscribe button and kindly press the bell icon so you will get the and whenever new video will be uploaded you will get the notification immediately. And please share and press the like button, and please leave the comment so that if for any doubt, so I will try and answer each and every question if you have any doubt. Thank you, thank you, thank you very much.